Assalamu alaikum to all of you. My name is Masarrat Shafiq and I am your teacher. Today AIM Foundation is going to celebrate Chacha Nehru's birthday. How we know Chacha Nehru and why we are celebrating this day as a international day. So today we are going some topics about Chacha Nehru and you all are describe and distinguish the Chacha Nehru's personality. So I will call you one by one and come here and spread your word by spiritual competition. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Sania. I study in class 10th. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He was born on 15 of November in the year 1889 in the Allahabad. The name of his father was Motilal Nehru, who was a prominent lawyer. He got his early education at home. However, went to England for getting higher studies and returned again to the country. 1912, he became a lawyer just like his father. Later, he became involved in the India's freedom movement with the Mahatma Gandhi. During the freedom movement, he sent to jail several times. However, after Independence Day of India's in 1947, he became the first Prime Minister of India. Thank you to all of you. Assalamu alaikum. My name is Shama. I study in 10th class. Pandit Jawaharlal Nehru was born in Allahabad on 14 November in 1889. He received his early education at home under private tutors. At the age of 15, he went to England and after 2 years at home, joined Cambridge University, where he took his post in natural science. He was later called to the bar from Inner Temple. He returned to India in 1912 and plunged straight into politics. Even as a student, he had been interested in the struggle of all nations who suffered under foreign domination. He took keen interest in the Sinn Féin movement in Ireland. In India, he was inevitably drawn into the struggle for independence. Thanks to all. My name is Ilma. I am studying in 10th class. Happy Children's Day 2021. India celebrates Children's Day of Bal Divas every year on November 14th on the occasion of Pandit Jawaharlal Nehru birth anniversary. The first Prime Minister of India had once said that children are the country's future and how we bring them up will determine the future course of our country. He believed that children show immense potential to contribute to society and humanity. Moreover, he came to be known as Chacha Nehru because of this affection to world children. Therefore, on November 14th, people pay their tribute to the first Prime Minister of India and his vision. On this day, school organic cultural activities. Children come dresses in colorful clothes and deliver special performance. Thank you to all of you. Assalamu alaikum. My name is Farah. I study 8th class. My topic is Pandit Jawaharlal Nehru. Happy Children's Day 221. India celebrates Children's Day or Bal Divas every year on 14 November on the occasion of Pandit Jawaharlal Nehru
birth anniversary, the first Prime Minister of India had once said that children are the future, and how we bring them up will dramatically the future. Thank you all of you. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुशनुमा है। आज बाल दिवस है और मैं आप सभी को इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी आज यहाँ बाल दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चाचा नेहरू की जयंती के मौके पर हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। आज का दिन बेहद ख़ास है। बच्चे घर और समाज में खुशी का कारण होने के साथ ही देश का भविष्य भी होते हैं। जवाहरलाल नेहरू हमेशा बच्चों के बीच में घिरे होना पसंद करते थे। वे हमेशा बच्चों को कठिन परीक्षा और बहादुरी के कार्य करने के लिए प्रार्थना करते थे। बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। 1964 में उनकी मृत्यु के बाद से उनका जन्मदिन पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। धन्यवाद। My name is Mahvish Sherwani. I study in class 10th. Happy Children's Day. Jawaharlal Nehru was born 14 November 1889 in Allahabad in British India. His father Motilal Nehru 1861-1931, a self-made wealthy barrister who belonged to the Kashmiri Pandit community, served twice as President of the India. We celebrate Children's Day on 14 November every year with excitement and regret. Children's Day celebrate on the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India and a great leader. He loved Children's Day very much. Children's Day celebrations are done throughout the country. Okay, thank you all of you. My name is Shaina. I'm studying in 10th class. I'm talking about Jawaharlal Nehru. His father name is Motilal Nehru. His mother name is Sarup Rani. His wife name is Kamala Nehru. His daughter name is Indira Gandhi. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Jawaharlal Nehru was born in Allahabad on 14 November 1889. He received his early education at the home under private tutor at the age of 15 years. He went to England and after 2 years at Harrow, he joined Cambridge University where he took his trip in natural science. He was later called to the war from Inner Temple into politics. Even as a student, he had been interested in the struggle of all nations, how suffered under domination. He was invited drawn into the struggle for independence. Thank you all of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afsana. I am talking about Pandit Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru, also referred to as Pandit Nehru. 14 November 1889, Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He is also known as Pandit Nehru because of his Kashmir Pandit roots. He is famous Chacha Nehru, Uncle Nehru in children. He was born on 14 November 1889 in Allahabad. His mother name was Swarup Rani. His father Motilal was a prominent lawyer.
Children's Day in India is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru died on 27 May 1964 due to cardiac arrest. Thank you very much. Assalamu alaikum. My name is Hina. I am studying 10th class. सबको बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, एक धन्य परिवार में थे और माता का नाम स्वरूप रानी था। पिता पैसे से वकील थे। जवाहरलाल नेहरू इनके इकलौते पुत्र थे, 3 पुत्रियां थीं। नेहरू जी को बच्चों से बड़ा स्नेह और लगाव था और वे बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे। शिक्षा जवाहरलाल नेहरू के दुनिया के बेहतरीन स्कूल और विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में पूरी की थी। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। हैरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर 1912 में नेहरू जी ने बार एट लॉ की उपाधि ग्रहण की और वे बाद में बुलाए गए। पंडित नेहरू शुरू से ही गांधी जी से प्रभावित रहे। 1912 में कांग्रेस में जुड़े। 1920 के प्रतापगढ़ में पहले ही किसान मोर्चे में संगठन करने के श्रेय उन्हों को जाता है। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू घायल हुए और 1930 में नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए। उन्होंने 6 माह जेल में काटी। 1935 में अल्मोड़ा जेल में आत्मकथा लिखी। उन्होंने कुल 9 बार जेल की यात्रा की। उन्होंने विश्व धरण किया। अंतर्राष्ट्रीय नायक के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। उन्होंने 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष के पद लाहौर 1929, लखनऊ 1935, 36 फैजपुर 1937, दिल्ली 1941, हैदराबाद 1953 और कल्याणी 1954 को सुशोभित किया। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी 9 अगस्त 1942 को मुंबई में गिरफ्तार हुए। वे अहमदनगर जेल में रहे, जहां से 15 जून 1945 श्रद्धांजलि प्रतिभागित किया और 1954 में भारत रत्न के अंकुरित नेहरू जी ने टेस्ट राष्ट्रों को संगठन किया। उनका नेतृत्व किया। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत मिले थे, किंतु महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आज़ादी के पहले गठित अंतर्गत सरकार के और आज़ादी के बाद 1947 के भारत में प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को उनके निधन तक इस पद पर बने रहे। नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों के सुधार नहीं कर पाए। उन्होंने चीन को तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। चीन का आक्रमण जवाहरलाल नेहरू के लिए एक बड़ा झटका था और शायद इसी वजह से उनकी मौत भी हुई। जवाहरलाल नेहरू को 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। स्वाधीनता की लड़ाई को चलाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई का खास प्रस्ताव तो करीब एकदम से पास हो गया। खास प्रस्ताव इस्तेकाम 31 दिसंबर की आधी रात से घंटे की चोट के साथ, जबकि पिछला साल गुजरकर उसकी जगह नया साल आ रहा था, मंजूर हुआ। लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित होने के बारे में नेहरू की मेरी कहानी से बस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिरा परवीन है और मेरा टॉपिक है चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। पंडित जवाहरलाल नेहरू
is my favorite leader. He was born 14 November on 1889. His father Motilal Nehru was a famous lawyer. His mother was an ideal woman. Motilal Nehru was a famous lawyer. His mother Swarup Rani was an ideal woman. He was born in rich family, so his father gave him the best education. Children are the wealth of a nation, so children is celebrated all over the world. Under UNO, Pandit Jawaharlal Nehru loved child. He found himself happy in the company of children. So Nehru was called Chacha Nehru. By good luck, Children's Day falls on 14 November. It coincided with the date of late Nehru ji. Children are required to take part in program of dancing, singing and sport this day. He died 27 May 1964 due to cardiac arrest. Shanti Van near Rajghat in New Delhi is resting place of Nehru ji. Thank you. Good morning to one and all. Today I am present here. I am Anamta Yasin. I wish you a very happy Children's Day. I am talking about Pandit Jawaharlal Nehru. Children are the gift of God. Let them fly their thought. Happy Children's Day. The earth reveals its innocence through the smiles of children. A very warm wish for all the children on this special day. Children are like birds in a garden and should be carefully and loving natured as they are the future of the nation and the citizen of tomorrow. Only through right education can a better order of society be built up. Jawaharlal Nehru was born on the 14 November 1889. He belonged to community of Kashmiri Pandits. He was eminent personality of Indian freedom struggle. Nehru had complete graduation for Trinity College in the years 1910. Jawaharlal Nehru had married Kamala Nehru on the 8th of February 1916. Nehru practiced law from the Inner Temple, London. He was the son of Motilal Nehru. Motilal Nehru fought for the freedom of his country. He was the supporter of the great Mahatma Gandhi. He gave up his legal career to join Mahatma Gandhi in the non-cooperation movement. He was an Indian freedom fighter and 5-time president of the Indian National Congress. He was the first Prime Minister of India after the independence. He was the longest serving president of India from 15 August 1947 till his death on 27 May 1964.
As a child lover, he said that children are the future of a nation. Article 44 of the Indian Constitution, which forms the basis of secularism in India, was written by Nehru. He wanted to model India as a secular country and want to eradicate religions taboos from India. Jawaharlal Nehru was a prolific and talented writer. He wrote a number of books like the Discovery of India, Glacium of World History, and his autobiography, Towards Freedom. Jawaharlal Nehru died on 27 May 1964 due to cardiac arrest. Shantiven near Rajghat in New Delhi is the resting place of Nehru. Children begin calling him Chacha Nehru out of love and respect. Thank you for listening me. My topic: Pandit Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was 14 November 1889 in Allahabad. His father's name was Motilal Nehru and mother's name was Sarup Rani. Family, so his father gave him in the best education. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। आज बाल दिवस है। आज के दिन की आप सभी को अधिक शुभकामनाएं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी 9 अगस्त 42 को मुंबई में गिरफ्तार हुए और अहमदाबाद नगर जेल में रहे, जहां से 15 जून 1945 को रिहा किए। आज़ादी के पहले कठिन अंतरिम सरकार में और आज़ादी के बाद 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को उनके निवेदन तक इस पद पर बने रहे। धन्यवाद। Assalamualaikum. Jawaharlal Nehru, first Prime Minister of the India. Pandit Jawaharlal Nehru was born 1889. He received his father name Motilal Nehru, 1861-1931. Mother was Suprani and thank you. My topic: Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He was born on 14 November 1889 in Allahabad. His father's name was Motilal Nehru and mother's name was Sarup Rani. Pandit Jawaharlal Nehru received alone from Cambridge University. Thank you all of you. Assalamualaikum. My name is Aman Sevi. I study in 8th class. जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। उनके पिता स्वतंत्र
बैरिस्टर एवं समाजसेवी थे। नेहरू जी संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। इनके अलावा इनकी परिवार में इनकी 3 बहनें थीं। नेहरू जी कश्मीरी वंश ब्राह्मण थे। नेहरू जी ने देश विदेश में जाकर विद्यालय एवं महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने हेरो से स्कूल की प्रसंभा शिक्षा प्राप्त की। मेरा नाम बिलाल है। मैं आज चाचा नेहरू के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म वर्ष 1879 इलाहाबाद में 14 नवंबर को हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। वे एक प्रमुख वकील थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी। फिर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1912 के बाद अपने देश लौट आए। वो अपने पिता की तरह वकील बन गए। बाद में महात्मा गांधी जी के साथ स्वतंत्र आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन के दौरान वे बहुत बार जेल गए। 1947 के बाद जेल गए। वे बच्चों के बहुत शौकीन थे। वे बच्चों के साथ बहुत प्रेम करते थे। उनकी जयंती का मतलब 14 नवंबर को पूरे भारत देश में बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। शुक्रिया। My name is Suhail. Pandit Jawaharlal Nehru was born on the 14th of November 1889. Pandit Jawaharlal Nehru belonged to a community of Kashmiri Pandit. He was an eminent personality of Indian freedom struggle. Nehru had completed education from Trinity College in Cambridge in the year 1910. Jawaharlal Nehru had married Kamala Cole Nehru on the 8th of February 1916. Nehru practiced law from the near Temple, London. Thank you. My name is Adil. I have to speak about चाचा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके पिता प्रसिद्ध बैरिस्टर व समाजसेवी थे। नेहरू जी संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। इनके अलावा इनके परिवार में इनकी 3 बहनें थीं। नेहरू जी कश्मीरी वंश के अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अलीशा शेरवानी। आज बाल दिवस है और मैं आप सभी को इस दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम सभी आज यहाँ बाल दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चाचा नेहरू की जयंती के मौके पर हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। आज का दिन बेहद ख़ास है। बच्चे घर और समाज में खुशी का कारण होने के साथ ही देश का भविष्य भी होते हैं। जवाहरलाल नेहरू हमेशा बच्चों के बीच घिरे होना पसंद करते थे। वे हमेशा बच्चों की कठिन परिश्रम और बहादुरी के कार्य करने के लिए
प्रार्थना करते थे। बच्चों के प्रति उनके प्रेम का कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। 1964 में उनकी मृत्यु के बाद से उनका जन्मदिन पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। धन्यवाद। क्या आपका कमेंट क्या है कि प्रोग्राम को थोड़ा सा बताएं। How was the performances of all these guys? They performed very well, but we some struck because of lack of some days. That's why. Now all are very good, very good. भाई आज जिस तरह का आप लोगों से परफॉर्मेंस हमको मिला, हमने देखा, तो जो असल मकसद है इस प्रोग्राम का, जैसे हमने पहले भी कहा कि आप लोगों के अंदर छुपे हुए टैलेंट को उजागर करना, बाहर लाना, और जो कॉन्फिडेंस की कमी है उस कॉन्फिडेंस को आप तभी बढ़ा सकते हैं अपने आप में, तभी आप उसको कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा अपने अंदर बढ़ा सकते हैं कि जब आप यहाँ आकर, यानी स्टेज पर आकर परफॉर्म करेंगे। हेजिटेशन सबके अंदर होती है, सबके अंदर होती है, बड़े बड़े स्टार्स के अंदर होती है। जब तक वो पीछे रहते हैं तब तक उनको ऐसा लगता है कि हम परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोगों के अंदर कुछ करने की चाह होती है, हिम्मत होती है, कॉन्फिडेंस उसी को कहते हैं कि हम कर सकते हैं। तो जब वो कर सकते हैं वाली बात आप लेकर के आगे जाते हैं स्टेज पर और कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में अमिताभ बच्चन हो या दिलीप कुमार हो, उन्होंने जाते ही सबसे बेस्ट अवार्ड लेना शुरू कर दिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम सबको होती है, बट ये है कि जिनको अंदर से लगी हो कि हमको ये परफॉर्म करना है, ये काम हम कर सकते हैं, कोई भी काम, कोई भी फील्ड हो, जब वो अंदर से तैयार होते हैं जहनी तौर से, दिल से, मजबूती से, तो वो यकीनन एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और वो सक्सेस की निशानी होती है। बहुत से लोगों को सिंगिंग नहीं आती है, अगर उनसे कहा जाए कि सिंगिंग करो तो ऑब्वियसली कि वो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्हें मालूम है कि हम सिंगिंग नहीं कर सकते हैं, हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है। किसी से कहा डांस कीजिए तो उनसे कहा जाए डांस कीजिए तो डांस नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जिनको आता है उनको रोकने से रोकेंगे, वो रोकेंगे, वो करना चाहिए, वो डांस भी करेंगे, वो सिंगिंग भी करेंगे, ये और भी जो एक्टिविटी उनके अंदर होती है वो करेंगे। लेकिन जिन एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं ये जनरल और नॉर्मल चीज़ें हैं कि एटलीस्ट बात करना तो आपको आना चाहिए। इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हमने नहीं कराई कि आपको डांस परफॉर्म करना है, सिंगिंग करनी है, या कोई और टफ भागना, दौड़ना, कूदना, ऐसा कुछ हो। कोई एथलेटिक का प्रोग्राम तो है नहीं कि जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि हम भागेंगे तो गिर जाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें कि सिर्फ आपको बात करने का सलीका आना चाहिए। आप कहीं किसी जगह जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में बैठते हैं, किसी अनजान आदमी से मिलते हैं, किसी ऑफिसर से बात करते हैं, तो उस वक्त आपसे बात नहीं की जाएगी तो बड़ा अजीब लगता है। तो घबराहट, डर तभी निकलेगा जब आप यहाँ बात करेंगे तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा कि हम तो स्टेज पे खड़े होकर लोगों से बात करते हैं, इतने लोगों के बीच में मजमे में हमने कैमरे के सामने बात की है, तो इनसे बात करने में क्या आता है। और सच और अच्छी बात करने में कभी डरने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से ही बात कर लीजिए, कोई भी ऑफिसर हो, बड़ा हो, छोटा हो, बात कर सकते हैं। तो आपके अंदर इसी बात को लेकर के जो कमज़ोरियाँ हैं, जो इनकॉन्फिडेंट हैं आप लोग बात करने के लिए, उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आप लोगों की जो कोशिशें हैं वो हमें बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं। प्रीवियस टाइम के मुकाबले में आज जो हमको इम्प्रूवमेंट नज़र आया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और जो लोग आज परफॉर्म नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न, कोई बात नहीं है, लेकिन वो आइंदा ये ख्याल रखें जहन में कि हमें प्रोग्राम में शामिल होना है, जैसा भी हो सकता है हम परफॉर्म करेंगे। एटलीस्ट कोशिश तो की, जिन लोगों ने कोशिश की सब ने बहुत अच्छी कोशिश की, और उस कोशिश की बुनियाद पर ही कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू होती हैं। कोशिश नहीं करेंगे तो कामयाबी के रास्ते पर हम चल ही नहीं पाएंगे, जब चलेंगे नहीं तो कामयाब नहीं होंगे। तो किसी भी चीज़ को आप शुरू करने के लिए कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। बहरहाल आज की जो परफॉर्मेंसेज हैं उसमें मैं सबसे ज़्यादा वो जो भाई जिन लोगों ने परफॉर्म किया ये सभी जानते हैं, उनके नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के जो विनर्स हैं मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग अपना अजम्पशन जाहिर करें, कौन ऐसे 3 लोग हो सकते हैं जो आज इस मेडल के हकदार होंगे, कोई बता सकता है?
ये इसको कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पर ऐसा से कमतरी है। थर्ड पे क्यों होंगे? व्हाई नॉट ऑन फर्स्ट? ओके, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने कोशिश की, और कोशिश ही कामयाबी की निशानी है। आप समझ लीजिए, कोशिश ही कामयाबी की निशानी है कि अगर हम कोशिश करेंगे, यानी अगर सपोज टू भी कहीं पर वो गड्ढा खोदना है, ठीक है, अगर हमने कहीं गड्ढा खोदा कि यहाँ से पानी निकलना है, तो उसको खोदने के लिए जब हम कोशिश करते करते थोड़ा नीचे जाते जाते तो हम थक जाते हैं। अगर हमने ये सोच लिया कि बहुत देर हो गई, आधा गड्ढा खोद दिया, अभी तो पानी नहीं निकल रहा, काम करते हैं दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ खोदेंगे। फिर आपने वहाँ गड्ढा खोदा, फिर थक गए, फिर आधा गड्ढा खोदने के बाद फिर तीसरी जगह गए, फिर चौथी जगह गए, तो मालूम ये हुआ वो आधे आधे गड्ढे खोदने से आपने 5 गड्ढों के बराबर मेहनत की, गड्ढे भी खोदे, लेकिन सही डायरेक्शन में, सही तरीके से प्रॉपर आपने एफर्ट्स नहीं किए। अगर एक ही गड्ढे को तब तक खोदते रहते जब तक कि वहाँ से पत्थर, गंदगी, कूड़ा, कचरा, पानी कुछ ना निकल आता, तब तक आपको वो राहत नहीं मिलती है। हो सकता था कि आपको वही जो 5 की जगह 3 गड्ढे खोदने के बराबर आप खोदते तो आपको पेट्रोल भी निकल सकता था, पानी भी निकल सकता था, कुछ भी हो सकता था। अल्लाह की नेमतों की कमी नहीं है। इसलिए कहते हैं सही डायरेक्शन में अपना 100% इनपुट दीजिए। 100% मतलब ये है कि आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि हमने इस काम के लिए पुरजोर कोशिश की, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी हिम्मत जो थी हमने इसमें लगा दी। अब फैसला अल्लाह के इख्तियार है, इसमें जो भी फैसला आएगा हम इसको बखुशी कबूल करेंगे। ये नीयत, ये इरादे, ये जहन हमेशा बना कर रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पर एतमाद रखना है, अपनी कोशिशों पर, काविश पर, मेहनत पर फोकस रखना है कि हमें ये काम करना है, कोशिश हमें करनी है, कामयाबी। आज का जो जूरी का फैसला है उसके लिए मैं दावत देता हूँ जो आज के तीसरे नंबर पर आज के पार्टिसिपेंट हैं। कोई एज्यूम करेगा नंबर 3 पर कौन हो सकते हैं? नहीं, नंबर 3 पर अच्छी परफॉर्मेंस देना और उनके इस हौसले की, देखो क्या होता है, उम्र कभी किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है, सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती है। उम्र की बुनियाद पर आप ये सोच लें कि अब हम बड़े हो गए, अब हम ABCD नहीं सीख सकते हैं, या हम शादीशुदा हो गए अब हम ये नहीं कर सकते हैं, या हम बाल बच्चे वाले हो गए अब ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी काम ज़िंदगी किसी भी मोड़ पर कर सकते हैं। तो आज के हम इसी तरह की बातें करते हुए हमारे बीच में है ताहिरा जो 3rd नंबर की कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी, ऐसा हो सकता है। देखिए इसी कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसकी उम्मीदों पर कब कौन खरा उतर जाए और कौन सी उम्मीदें पूरी हो जाए कोई नहीं जानता। यानी एक्सपेक्टेशन और अनएक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो इंसान सोच तो सकता है लेकिन अल्लाह का दे नहीं सकता। ताहिरा ने जो परफॉर्म किया वो कैसा किया और ये अवार्ड ये आज का मेडल ने क्यों दिया गया उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं कि ताहिरा जैसे आप जानते हैं शहर से आती हैं, इनके हस्बैंड जो ताले का काम करते, जो भी काम करते ताले से रिलेटेड, वो बामुश्किल अपनी ज़िंदगी को चलाने में जुस्तजू कर रहे हैं। उनकी सपोर्ट इनको है, इनकी सपोर्ट उनको है, ये दोनों मिल कर के अपनी ज़िंदगी से अपनी बच्ची के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। और ये वहाँ से आकर यहाँ पढ़ रही हैं, पढ़कर कुछ करने कुछ बनने का जज्बा है अपने लिए, बल्कि अपने बच्ची के लिए भी, उसके फ्यूचर के, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। इस जज्बे को सलाम करते हुए जो कोशिशें इनकी हैं, क्योंकि आप सब में सबसे सीनियर हैं एज वाइज, और इन्होंने जिस कोशिश को यहाँ पर अंजाम दिया है मैं उसको सलाम करता हूँ। इसीलिए आज जूरी की तरफ से ये इनका अवार्ड और ये मेडल दिया गया। बहुत देखिए आज भी प्रीवियस प्रोग्राम की तरह से सभी लोगों ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन इसमें कुछ बारीकियां ऐसी होती हैं जो पार्टिसिपेंट्स को समझ में नहीं आती, और पार्टिसिपेंट्स को सबको ये बात समझनी होगी कि जूरी के जो डिसीजन होता है वही फाइनल डिसीजन होता है, उसको सबको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, कंप्लेंट कभी नहीं करनी चाहिए कि हम तो ये सोच रहे थे, हमारा ऐसा था, हमारा वैसा था, हमने ऐसा किया वैसा किया। तो ये सब चीज़ों से आप थोड़ा सा बचें और अल्लाह के फ़ैसले पर, जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वही चीज़ें बेहतर होती है। और हम सभी लोगों को इक्वली सपोर्ट करते हैं
और चाहते हैं कि आप सब लोग फ्रंट पर आए, बाहर आए, ऊपर चढ़े, ऊपर बढ़ें, तरक्की करें। हम न किसी के अगेंस्ट हैं, न किसी के फेवर में हैं, और चूँकि सभी लोग हमारे लिए इक्वल हैं, इसलिए हम सबको बराबर नज़रों से देखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं। अगले प्रोग्राम में कोई और आएगा, किसी और प्रोग्राम में कोई और आएगा, कौन कहाँ परफॉर्म करेगा, कौन कैसा परफॉर्म करेगा, ये देखते रहेंगे, करते रहेंगे। तो आज के सेकंड विनर हैं हमारे सुहेल। सुहेल साहब के बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जैसे कि तायरा के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया। सुहेल कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा तो लगेगा जी, लेकिन आप लोगों को क्या लगा? अब सुहेल की क्या बात हमने देखी होगी। क्या होता है किसी भी चीज़ का फ्लो, कॉन्फिडेंस और स्टडी, क्योंकि ये सब चीज़ें आप सबको नेट से देखी पढ़ी, इन्होंने भी की, बस कहीं ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी लोगों से थोड़ा सा बेटर लगी, उसकी बुनियाद पर ये सब चीज़ें दी जाती हैं, की जाती हैं, और बाकी लोगों को भी इंशाल्लाह ताला मिलेगा। बहरहाल आज के सेकंड रनर सुहेल साहब तशरीफ लाएं। अब लास्ट नॉट लीस्ट अनंता। अनंता यहाँ मत आओ। अनंता का टाइम आएगा अभी, अनंता का नहीं है, लेकिन आज का टाइम हो सकता है कि हिना का नहीं है, सानिया। फोटो सानिया ने जिस तरह से परफॉर्म किया था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। लास्ट प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा था, और आज की परफॉर्मेंस अनंता की बहुत अच्छी थी, और महविश की बहुत अच्छी थी, इल्मा की बहुत अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं फ़्लो, डिक्शन और हेजिटेशन में प्रॉब्लम था। जिस फ़्लो के साथ में सानिया ने पढ़ा, बाकी लोगों का फ़्लो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम था, बाकी सब लोगों ने अच्छा किया। तो मैं तीनों विनर्स को चाहूँगा कि एक बार फिर से स्टेज पर आ जाए प्लीज़। तुम गिरा देती उधर से तार मत गिरा। फोटो ऐसे नहीं, घुमा के लो, घुमा से। आज का ये प्रोग्राम बस इसी मोड़ पर इख्तिताम किया जाता है, लेकिन आप लोगों से फिर मैं वही बात दोहराना चाहूँगा, मायूस ना हो, हिम्मत ना हार, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। ठीक है, एक कोशिश इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है, लेकिन कोशिश ना करने वालों के लिए मौके नहीं होते। आज मकसूद और रेहान, इन्होंने कोशिश भी नहीं की, इनको लगा कि तैयार नहीं है। मसला कभी भी ये मत सोचिए कि तैयारी नो तैयारी। मेरा अपना मानना यह है कि ज़्यादा तैयारी यानी मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। ज़्यादा आप घुसोगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। मैं कभी ज़्यादा स्टडी में बिलीव नहीं करता। मैं आपको बताऊँ, मैं कभी कभी इंटरव्यूज़ के लिए जाता था मुंबई के अंदर, तो मैं बहुत सोचता था आज ये बात होगी, फिर ये सवाल का होगा, ये जवाब दूंगा, ऐसा बोलूँगा, और वहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें होती थी। सवाल मतलब एक भी वो नहीं होते थे जिसके हम स्टडी करते थे, मतलब कुछ और ही पूछ लेते थे। इसलिए फिर हमने छोड़ दिया, जो होगा जब होगा जैसा होगा देखा जाएगा। तो स्पॉन्टेनियसली जो सवाल और जवाब होते हैं ना, उसका एक मज़ा अलग होता है। वहाँ आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो होता है वो आपके काम आता है। तो ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ खड़े होकर बोलना था ना, देख के बोलना, बोल देते, कोई मसला नहीं। तो आपने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया तो सर्टिफिकेट जो मिलने वाला था उससे भी आप महरूम रह गए। इसलिए मेरा हमेशा के लिए कहना होगा कि कभी भी कोई भी प्रोग्राम हो, पीछे मत रहिए। परफॉर्मेंस अच्छी होगी ख़राब होगी वो देखा जाएगा, लेकिन कोशिश तो करें, कम से कम हम पोस्टर पर नाम तो लिखा है, पिक्चर में हमारा भी तो नाम आ जाए।
जब वीडियो बनेगी तो कहीं ना कहीं हमारा भी फ़ोटो छपेगा, हम लोग भी दिखेंगे। अच्छा बुरा ये सब चीज़ हमारा सोचना काम नहीं है। आज हमने किया है, कल दूसरा अच्छा करेंगे, कल तीसरा करेंगे, आगे करेंगे, कभी ना कभी हम लोग कामयाबी ज़रूर होंगे। तो आज कितना 14 को 21st को भी तो है ना, बीच में एक संडे और आएगा ना। तो आप लोग जो संडे में आते हैं वो लोग अगर रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो अपने आप को अपडेट करने के लिए जो हमारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन, जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो एटलीस्ट अपने मोबाइल में व्हाट्सएप और हमारे जो मैसेजेस होते हैं उसको ज़रूर चेक किया करें। अगर किसी के पास में कीपैड वाला मोबाइल है तो अपने आसपास वालों से शेयर कर लें कि क्या, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर रोज़ या एक रोज़ छोड़ के ना कोई इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। तो आपस में, जैसा अभी आपने कहा ना आपके प्रोग्राम को नहीं मालूम, मैंने रात को डाला था आज ये प्रोग्राम में तैयारी कर, तो वही ना, तो रोज़ एक दूसरे से शेयर कर लें, पूछ लें कि भी कोई प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।